Hello everyone, welcome back to Kaushal Bioprep. In today's video lecture, we are going to discuss the organogenesis of chick embryo, and we will specifically be focusing on one system, that is the excretory system. So what is excretion? I will start from there, and with this lecture you will understand the overall development of excretory system in the chick embryo, right? In previous video lectures we have already discussed the development of the brain, spinal cord, heart, and this one more, eye. So if you have not seen those lectures, kindly go back to those so you can understand that also, because all of these lectures will include the organogenesis of chick, which is basically asked in the JKPSC syllabus, right? So first of all, we'll start with what is excretion. Excretion is an essential physiological process in which there is removal of the metabolic waste from the body. After metabolism, whatever waste is there produced, that waste is removed through the process of excretion from the body. In case of vertebrate, the excretory system is primarily kidneys, basically a pair of kidneys there, and these kidneys develop through a well regulated embryological process. Why well regulated? Because this process depends on different signaling molecules which is specific to this process, right? अब अगर आप बर्ड्स में बात करें, जैसे कि एग्जाम्पल में डोमेस्टिक चिक है जो आपका, विच इज़ गैलस कैलस, किडनी डेवलपमेंट बेसिकली फॉलोज अ ट्राईफेजिक पैटर्न. तो 3 फेज में ये पैटर्न में आपका जो किडनी है वो डेवलप होगा, एंड इवन इन अदर एमनियोट्स ऑल्सो दैट इज़ द सेम पैटर्न विच इज़ फॉलोड. इफ़ यू नो वट इज़ एमनियोट्स और वट आर द ऑर्गेनिज्म विच कम अंडर द एमनियोट्स, तो यू कैन कॉमेंट इट डाउन. अगर नहीं पता है तो भी आप क्वेश्चन में लिखें, आई विल आंसर यू फॉर दिस, राइट. नाउ सो वो 3 फेजेस क्या है? द फर्स्ट वन इज प्रोनेफ्रस किडनी, देन देर इज मीजोनेफ्रस, एंड फाइनली देर इज मेटानेफ्रस. ये इसी फेजेस में आगे बढ़ेंगे. दैट मीन्स जो प्रोनेफ्रस है ये सबसे ज़्यादा कैसा होगा, आप कह लीजिए रूडिमेंट्री स्टेट वाला होगा. स्टार्टिंग में प्रोनेफ्रस बनेगा, थोड़ी सी डेवलपमेंट होगी तो वो मीजोनेफ्रस पे जाएगा, एंड फाइनली देर इज मेटानेफ्रस. तो 3 फेज में डेवलपमेंट होने वाला है. हेयर इन द पिक्चर यू कैन सी ए इज प्रोनेफ्रस, दिस वन इज द मीजोनेफ्रस, एंड सी इज रिप्रेजेंटिंग मेटानेफ्रस. तो यहाँ पे अलग अलग सेक्शन है. जैसे यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, दिस इज प्रोनेफ्रिक टिब्यूल्स. अगर ये रीडेबल नहीं है तो आई विल राइट इट फॉर यू, प्रोनेफ्रिक टिब्यूल्स. वैसे ही यहाँ पे मीजोनेफ्रिक टिब्यूल्स है, ठीक है, बट ये कैसे डेवलप होते हैं वो हमने पढ़ना है. तो विल फॉलो ईच स्टेप टू अंडरस्टैंड व्हाट दीज टिब्यूल्स आर. तो अगर हम इसको देखें, द फर्स्ट फेज इज़ द प्रोनेफ्रस. अब प्रोनेफ्रस को आप ट्रांजिएंट या नॉन फंक्शनल फेज भी कह सकते हो. वाई? बिकॉज प्रोनेफ्रस इज द फर्स्ट एम्ब्रियोनिक किडनी टू अपीयर, एंड इट इज़ रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर. तो यहाँ पे फंक्शनैलिटी आप कह लीजिए नहीं होती है, right? And it develops from intermediate mesoderm. This is something which you need to basically learn, and it develops in the cervical region around stage 8 to 10 of the Hamburger Hamilton staging. चिक डेवलपमेंट आप 2 तरह से पढ़ते हो. एक तो आवर बेसिस पे पढ़ते हो कि 12 आवर पे क्या बना, 14 आवर्स पे क्या बना. वैसे ही आप एक हैम्बर्ग हैमिल्टन स्टेजिंग सिस्टम पढ़ते हो. अगर नहीं पता है तो यू कैन ऑल्सो कॉमेंट इट डाउन एंड आई विल एक्सप्लेन इट फॉर यू in another video lecture. Now stage 8 से 10 में you will have pronephros development. So pronephric tubules बनेंगे, लेकिन ये tubules जो हैं they will degenerate by stage 12. तो इसीलिए ये कैसे हैं, ट्रांजिएंट हैं, थोड़े टाइम के लिए रहने वाले हैं और नॉन फंक्शनल हैं, ठीक है जी. Then when these pronephric tubules degenerate, they will leave behind the pronephric duct which plays a role in later kidney development, right? Now these are some signaling molecules, molecular signals which are required for pronephros development in the early stage, which is basically 48 hours. और अगर आप हैमबर्गर और हैमिल्टन स्टेजिंग सिस्टम देखें तो स्टेज 8 से 10 में है, ठीक है. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कौन से सिग्नलिंग क्यूज इन्वॉल्व हैं. सो इफ़ यू सी क्लियरली, द फर्स्ट क्यू इज पैक्स 2/8. दिस इज असेंशियल फॉर इनिशिएटिंग किडनी डेवलपमेंट. तो स्टार्ट ये करेगा. देन देर इज LEM1 विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज LHX1. दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर अर्ली टिब्यूल फॉर्मेशन. फॉर एग्जाम्पल अगर LEM1 नहीं है, दिस इज मान लीजिए म्यूटेटेड, तो किडनी डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो सकता. देन देर इज BMP4 एंड रेटिनोइक एसिड विच इज रेगुलेटिंग द इंडक्शन ऑफ नेफ्रिक लीनिएज, राइट. So here you can see very clearly this is the portion of the pronephric tubule, but later on these tubules are going to be degenerated. थोड़े टाइम के लिए बनते हैं ये. उसके बाद ये मीजोनेफ्रिक tubules अभी कम दिखाई दे रहे हैं आपको, ये बनने शुरू होंगे जो नेक्स्ट स्टेज है. तो सेकेंड स्टेज क्या है, मीजोनेफ्रस विच इज़ फंक्शनल इन एम्ब्रियोनिक लाइफ. एडल्ट में नहीं, एम्ब्रियोनिक लाइफ में ये फंक्शनल होने वाले हैं. अगेन अगर आप इसको स्टेजिंग में देखोगे तो स्टेज 13 है,
जहाँ पे ये बनने शुरू होते हैं एंड दे अराइज फ्रॉम द इंटरमीडिएट मेसोडर्म एंड दे बेसिकली एक्सटेंड अलॉन्ग द मिड बॉडी, राइट. देन इन दिस स्टेज द मीजोनेफ्रॉन्स या निफ्रॉनिक किडनी भी कह सकते हो आप, मीजोनेफ्रस भी कह सकते हो. These are functional. Why? Because they consist of the functional element which is glomeruli, tubules, right. तो बेसिकली नेफ्रॉन जो बेसिस है किडनी का, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, वो बनना शुरू हो जाता है यहाँ पे. और यहाँ पे जो मेन डक्ट है दैट इज द मीजोनेफ्रिक डक्ट. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द वॉल्फियन डक्ट, ठीक है. तो दिस ड्रेन इनटू अ कॉमन ओपनिंग कॉल्ड क्लोएका. तो दिस इज अ फंक्शनल टाइप ऑफ किडनी और एक्सक्रीटरी सिस्टम विच इज प्रेजेंट इन एम्ब्रियोनिक लाइफ ऑफ चिक. अब लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है कि जो मीजोनेफ्रॉन है इन केस ऑफ बर्ड दिस इज रिलेटिवली लार्ज. हमारे केस में, मैमल के केस में अगर आप देखेंगे तो इतना बड़ा नहीं होता है. एंड इट इज़ ऑल्सो फंक्शनल इन केस ऑफ चिक एज प्राइमरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक लाइफ, राइट. एंड इट ऑल्सो प्रोड्यूसेज यूरिन एंड इट मेंटेन्स दी फ्लूइड हेमोस्टेसिस. तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा. मीजोनेफ्रस इन केस ऑफ बर्ड इज फंक्शनल इन एम्ब्रियोनिक लाइफ, ठीक है. एंड लेटर ऑन इट विल डीजनरेट एंड मेटानेफ्रस विल टेक ओवर. लेकिन ये कब होगा? नियर हैचिंग. तो बाय डे 21 ये होने वाला है, ओके. अब जब मीजोनेफ्रस बनता है तो इसको इंटरिम किडनी इसीलिए कहते हैं, ठीक है, बिकॉज ये एम्ब्रियोनिक लाइफ स्टाइल में है सिर्फ 3 to 7 डेज में ये आपकी बेसिकली फंक्शनल है. एंड दीज आर द मॉलिकुलर सिग्नल्स विच आर देयर. नंबर 1 इज WT1 जिसको आप लिम्स ट्यूमर 1 कह रहे हैं. दिस इज असेंशियल फॉर मीजोनेफ्रिक नेफ्रॉन डेवलपमेंट. नेफ्रॉन ध्यान रखिएगा, द पार्ट विच इज हैविंग ग्लोमेरुलाई, capillary for ultrafiltration and tubules. Next is FGF8. FGF8 is basically there to promote tubule elongation. बन तो गए हैं tubule क्योंकि WT1 was there. Now tubule will elongate and nephron का पैटर्निंग होना शुरू हो जाएगा. Then there is Wnt9b and GDNF. GDNF क्या होता है? Glial cell line derived neurotrophic factor. और ये जो फैक्टर्स हैं दे इंड्यूस मीजोनेफ्रिक डक्ट फॉर्मेशन एंड ब्रांचिंग, ठीक है. तो ये जो ब्रांच बन गई, डक्ट फॉर्मेशन है, ये सब होगा. मीजोनेफ्रिक डक्ट आपको ये दिखाई दे रही है. तो ये आपका मीजोनेफ्रस है. देन फाइनली देर इज मेटानेफ्रस विच इज डेफिनेटिव एडल्ट किडनी एंड बाय स्टेज 26 to 30 ये फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा. बट इट विल फॉर्म फ्रॉम द पोस्टीरियर इंटरमीडिएट मेसोडर्म, ओके. नाउ व्हाट हैपन्स, देयर इज समथिंग कॉल्ड यूरेट्रिक बड. सबसे पहले ये बनना शुरू होता है. दिस इज एन आउटग्रोथ ऑफ मीजोनेफ्रिक डक्ट. जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये मीजोनेफ्रिक डक्ट है, इसकी आउटग्रोथ है, ये आपको दिखाई दे रही है यूरेट्रिक बड. ये बनना शुरू होता है एंड दिस बड इन्वेड्स द मेटानेफ्रिक मीजनकाइम एंड देन इंड्यूस द किडनी फॉर्मेशन. तो ये बड का बनना बहुत ज़रूरी है. देन देर इज़ ब्रांचिंग मॉर्फोजेनेसिस. और ये जो मॉर्फोजेनेसिस होगा इसकी वजह से आपका नेफ्रॉन का कंप्लीट फॉर्मेशन होगा विच इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी, ठीक है. एंड बाय डे 21 विच इज़ द हैचिंग डे, मेटानेफ्रस बिकम फुली फंक्शनल एंड टेक ओवर द एक्सक्रीशन पार्ट कंप्लीटली, ठीक है. नाउ द की मॉलिक्यूल सिग्नल विच आर इन्वॉल्व ड्यूरिंग द मेटानेफ्रस डेवलपमेंट इज GDNF and RET. Second is Wnt4 and PAX2 and last one is BMP7. जो GDNF और RET है दे इंड्यूस द यूरेट्रिक बड आउटग्रोथ. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. अगर ये नहीं प्रेजेंट होंगे तो कभी बड बनेगा ही नहीं, तो मीजोनेफ्रस से मेटानेफ्रस का फॉर्मेशन नहीं हो सकता. देन देर इज Wnt4 and PAX2 विच बेसिकली डिराइव द नेफ्रॉन डिफरेंशिएशन. एंड लास्टली देर इज BMP7. दे मेंटेन द मीजनकाइमल प्रोजेनिटर सेल विल इवेंचुअली लीड टू फॉर्मेशन ऑफ द एडल्ट किडनी. ये आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है जी. ना ओवरऑल अगर आप रेगुलेशन की बात करें, PAX2 एंड PAX8 फर्स्ट अपने मॉलिक्यूल्स पढ़े थे. दे आर एसेंशियल फॉर अर्ली डेवलपमेंट. अर्ली किडनी स्पेसिफिकेशन के लिए ज़रूरी है क्योंकि बननी कहाँ से? इंटरमीडिएट मेसोडर्म से बननी है. तो उसकी स्पेसिफिकेशन के लिए यू नीड PAX2 एंड PAX8. सेकेंड है आपके GDNF, द ग्लायल सेल लाइन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर्स एंड RET. ये दोनों ज़रूरी हैं यूरेट्रिक बड के लिए. मैं आपको वो बता रही हूँ जो ओवरऑल इंपॉर्टेंट क्लूज है, ठीक है, ब्रांचिंग के लिए इंपॉर्टेंट है. थर्ड इज द विंड सिग्नलिंग जिसमें Wnt4 और Wnt11 है. दे कंट्रोल द नेफ्रॉन फॉर्मेशन. तो अगर विंड सिग्नलिंग प्रॉपर नहीं चलेगी तो नेफ्रॉन फॉर्मेशन नहीं हो सकता, एपिथेलियल जो लेयर है उसका फॉर्मेशन नहीं हो सकता. देन लास्टली देयर इज BMP विच इज बोन मोर्फोजेनेटिक प्रोटीन. दिस रेगुलेट्स द mesenchyme to epithelial transition in the nephron development. So these are some important molecular regulators of kidney development. Now this is something which you need to understand is डेवलपमेंट तो आपने पढ़ लिया कि पहले प्रोनेफ्रस बनेगा, फिर मीजोनेफ्रस बनेगा, देन देर इज मेटानेफ्रस फॉर्मेशन. बट देर आर सम फंक्शनल एडेप्टेशन इन द चिक किडनी. व्हाट आर दोज?
नंबर 1 इज़ लैक ऑफ यूरिनरी ब्लैडर. अब जो बर्ड्स हैं ना, दे बेसिकली एक्सक्रीट अ पेस्ट, क्योंकि जो वो रिलीज़ करते हैं ना, वो पेस्ट क्यों है, क्योंकि वो मिनिमम, आप कह लीजिए मिनिमम वाटर को एक्सक्रीट करते हैं. ठीक है, जब वो नाइट्रोजनस वेस्ट बेसिकली रिमूव कर रहे होते हैं बाहर, तो वेस्ट इज डायरेक्टली एक्सक्रीटेड एट यूरिक एसिड. दैट इज इंपॉर्टेंट. तो दिस विल रिड्यूस वाटर लॉस. सेकेंड थिंग अगेन भाई, यूरिकोटेलिक एक्सक्रीशन है, तो नाइट्रोजनस वेस्ट किस फॉर्म में आएगा, यूरिक एसिड की फॉर्म में आएगा, ना कि यूरिया. मैमल में यूरिया है प्राइमरी नाइट्रोजनस वेस्ट पर, बर्ड्स के केस में क्या है, यूरिक एसिड है. एंड देन देर इज दिस थिंग, रीनल पोर्टल सिस्टम. बर्ड्स में जो रीनल पोर्टल सिस्टम है, उसकी वजह से ब्लड डायरेक्टली basically flow towards the kidney. So blood can flow directly towards the kidney for excretion. So the system is more efficient as compared to the other ones, right? So renal portal system की presence, uricotelic mode of excretion and lack of urinary bladder. These are some functional adaptations for chick kidney. So overall what we studied till now is कि development जो है excretory system का, वो embryonic base से start हो जाएगा. Triphasic sequence है. There is development of pronephros, जो कि आपका क्या है, नॉन फंक्शनल. देन देर इज़ मीजोनेफ्रोस, ये है फंक्शनल एम्ब्रियोनिक. एंड देन देर इज़ मेटानेफ्रोस, जो आपकी बेसिकली एडल्ट किडनी बनेगी. ठीक है जी. एंड देर इज़ सम मॉलिक्यूलर सिग्नलिंग विच इज़ इन्वॉल्व, जो मैंने आपको पीछे बता दी. देन देर इज़ अनदर थिंग दैट इज़ एवियन किडनी अडेप्टेशन. ठीक है, मॉलिक्यूलर सिग्नलिंग्स का ज़्यादा ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांस बहुत रहते हैं. पैक्स जो है दैट इज़ देयर फॉर किडनी स्पेसिफिकेशन इन अर्ली स्टेजेस. GDNF and RET is there for ureteric bud outgrowth. WNT is there for nephron formation and BMP is there for mesenchyme to epithelial transition. ठीक है जी. So this is it for today. I hope यहाँ से आपको एक थोड़ा सा बेसिक समझ आया हो about the embryonic kidney development or excretory system development in chick. So if you like the session, you can like the video, comment down your queries or suggestions or whatsoever is in your mind. अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप लिख सकते हैं. शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन ऑल्सो बी बेनिफिटेड, एंड सब्सक्राइब टू द चैनल टू सपोर्ट द चैनल. Stay connected for upcoming lectures. I will be bringing more lectures and we'll be soon completing the development biology. So if you have any question, any query, any suggestion, feel free to comment down. Thank you so much and I will see you all in the next lecture.